Welcome back, dear students. We are in sets, and in this video lesson, that is in part 2, I am going to discuss about some terms related to the sets and their examples. So let us start. Empty set. Empty, as its name suggests, it is empty, मतलब जो कि बिल्कुल खाली हो. So the definition says a set containing no element, मतलब जिसमें एक भी element ना हो at all is called the empty set, and it is also known as null set or void set. Okay, the other name of empty sets are null set and void set. And how can we represent empty set? By this symbol which is known as phi. The symbol is phi, and we can also express empty set with empty curly braces. Okay, so if there is a single element in the set, or we can say that a zero is there, then the set is not empty. मतलब अगर इसके अंदर एक भी एलिमेंट हुआ, चाहे वो ज़ीरो हो, तो भी वो सेट क्या नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा. ठीक है, तो एक भी एलिमेंट अगर होता है, सो वी कैन से दैट ए सेट विच हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट हो गया तो वो कौन सा सेट हो गया, नॉन एम्प्टी. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. और इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3. अब मुझे एक बात बताओ, यू ऑल नो दैट 2 and 3 आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, एंड वी नो दैट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर इन बिटवीन. ठीक है, सो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हुए, इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, एंड इट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट. सिंगल मतलब एक एलिमेंट. ओके, तो वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, दैट इज नोन एज सिंगलटन सेट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, ज़ीरो. Next is finite and infinite set. You all know that finite means which have some particular dimensions, और जिसको हम count कर सकते हैं. ठीक है, and infinite set means जिसको हम जिसके अंदर infinite terms होती हैं, that is known as infinite set. तो इसी अकॉर्डिंग जो finite set होगा उसमें finite number of elements होंगे, और जो infinite set होगा उसके अंदर infinite number of elements होंगे. So let us read the definition. An empty set or a non-empty set in which the process of counting of element surely comes to an end. ठीक है, कि हम उसको काउंट कर रहे हैं और वो हमसे काउंट हो पा रहे हैं. And you all know that finite terms can be countable is called finite set. Okay, a set which is not finite is called an infinite set. Now the number of distinct element containing a finite set is denoted by n a, जिसको मैंने बोला था कार्डिनल नंबर. ठीक है, n, और यहाँ पे ये सेट का सिंबल है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे उस सेट में, उसको हम इससे लिखते हैं, एंड इसका नाम, इसको बुलाते क्या है, कार्डिनल नंबर. तो एग्जाम्पल देखते हैं. ए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10. तो वी नो दैट दीज नंबर्स कैन बी काउंटेबल. देर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स. सो दिस इज फाइनाइट सेट. ओके, एंड वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट, दैट इज सेट ऑफ वोवल्स. V इज बिलोंग्स टू number of vowels in the English alphabet. So A, E, I, O, U that contain. So that is also finite set. Okay, now example of infinite set. We all know that on a line there are infinite number of points present. ठीक है, तो the set of all points on a line segment is an infinite set. Each value of the set n, capital Z, Q and R is infinite set.
Now n is the set which stands for set of natural numbers, z is set which stands for set of integers, q stands for a set of rational numbers, and r stands for all the real numbers. Okay, and you all know that all these numbers are infinite. So all these predefined set of natural, integer, rational and real numbers are infinite number of elements. Next is equal set. सो इक्वल सेट क्या होंगे? कोई भी दो सेट जो जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल हों. अब खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों या एलिमेंट्स भी इक्वल हों, तो इसके लिए आपको याद रखना है एलिमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हों. ठीक है, तो लेट अस रीड द डेफिनेशन. टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. वो कब इक्वल कहलाएंगे? इफ़ they have exactly the same elements and we can write A is equal to B. okay? मतलब जो एलिमेंट्स A में हैं वो सेम एलिमेंट किस में है? B में भी हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो सेट्स आर अनइक्वल और हम उनको कैसे लिखेंगे? A is not equal to B. अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है वो ज़रा देख लो. अगर एक सेट ऐसे लिखा हुआ है 1, 2, 3 और अगर एक सेट ऐसे लिखा हुआ है 2, 1 and 3 and the third set is written like 3, 2, 1, all these are equal because sequence doesn't matter in the set. ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो ये तीनों डिफरेंट सेट नहीं है, ऑल आर इक्वल सेट. एंड अगर हम किसी भी सेट में रिपीटेशन कर रहे हैं किसी नंबर का, जस्ट लाइक इफ़ आई एम राइटिंग लाइक 1, 1, 2, 2, 3, तो ये रिपीटेशन का मतलब कोई नया सेट नहीं बन गया जिसके पास 5 एलिमेंट्स हैं. एक्चुअली ये यही सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट्स हैं. और हम कह सकते हैं कि रिपीटेशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अगर रिपीटेशन वहाँ पर है भी तो भी वो डिफरेंट सेट नहीं हुआ. ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल ही हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट? इक्वल सेट हैज सेम एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन दो इक्विवेलेंट सेट हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. लेकिन एलिमेंट सेम हैं ये इसके अंदर ज़रूरी नहीं है. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट भी अगर सेम हो गए तो वो कौन से सेट बन जाएंगे? दो सेट्स आर इक्वल सेट. ओके, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम, देन दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स. सो टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if cardinal number of set A is equal to cardinal number of set B. Okay, equal sets are always equivalent but equivalent set need not to be equal. अब यहाँ पर देखो, दोनों एग्जाम्पल देखो. A के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 3 और 5 और B हैव एलिमेंट 2, 4 and 6. Now let us count the elements. There are 3 elements in this set and there are also 3 elements in this set. Okay, so we can say that set A and B are equivalent, and you can also check here 1, 3, 5 and there are 2, 4 and 6 means elements are not same, and thus we can say that A and B are equivalent. Clearly A is not equal to B, hence A and B are equivalent sets but these sets are not equal. Okay, I hope you understand. This is all about today's class. In this class we have discussed about empty set, equal set, equivalent set and singleton set. In the next class I am going to discuss about subsets and some important theorems and how can we solve the questions based on the subset. Okay, so thank you for watching.